Dear student, welcomes you all. Transportation problem part 3 video. Second video ਦੇ ਵਿੱਚ dear ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5. ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ with the help of WAM method, using WAM method, Vogel's approximation method, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਗਿਵਨ ਨੇ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 3 2 ਐਂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 1 3 ਐਂਡ 4. ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਜਾਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ Vogel's approximation method ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ WAM ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ WAM ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੇ ਆਪਾਂ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਯੂਨਿਟ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਲੀਸਟ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਲੀਸਟ 2 ਕਾਸਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ x ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਰੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 30 ਐਂਡ 220 ਕਾਸਟ ਹੈ ਔਰ 50 ਐਂਡ 30 ਦੋ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਲੀਸਟ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 20. ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋ ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 45 ਐਂਡ 90 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ 45. ਅਗੇਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 50 200 ਐਂਡ 250. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 150 ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਹੈ 50, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਹੈ 200, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 150. ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 50 90 250 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ 90 ਐਂਡ 50 ਦਾ 40. ਦੈਨ 30 45 200 ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 30 ਐਂਡ 45 ਦਾ. ਨੈਕਸਟ 50 170 220 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 120. ਫਸਟ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਹਾਈਐਸਟ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 150. ਤਾਂ 150 ਦੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 50 ਰੁਪੀਜ਼. ਤਾਂ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ. ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਐਂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 4 ਯੂਨਿਟ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚ ਐਵਰੇਜ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਯੂਨਿਟ. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ C ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ C ਫਰਦਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ C ਮੀਨਸ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ 50 ਐਂਡ 30 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ 20 ਐਂਡ 90 ਐਂਡ 45 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ 45 250 and 200 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ that is 50
एंड कॉलम वाइज आपां सिर्फ इस कॉलम नूं कैलकुलेट नहीं करना, बाकी दे कॉलम नूं आपां कैलकुलेट करांगे तां ओहदियां जिहड़ियां वैल्यूज़ दा डिफरेंस है वो सेम ही आएगा, क्योंकि सारे कॉलम सारियां रोज़ उहदे च कैलकुलेट हो रही ने। 50 90 दा डिफरेंस 40, 30 45 दा डिफरेंस 15 एंड लास्ट आपां कैलकुलेट नहीं करना। तां इत्थे जे आपां चैक करदे हां तां तुहाडे कोल आ गया जी 40 15 50 45 एंड 20। तो हाईएस्ट जिहड़ी तुहाडे कोल इत्थे पेनल्टी है अगेन 50 सेम रो दे विच आई है, तो आपां ये रो सिलेक्ट कर लांगे। इस रो दी नैक्सट लीस्ट कॉस्ट इनू तो आपां चैक नहीं करना, क्योंकि इहदे विच ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, अपने कोल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नैक्सट टू वैल्यूज़ विचों लीस्ट कॉस्ट दैट इज़ 200। इत्थे तुहाडे कोले अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट है 3, अवेलेबिलिटी है 2 और इत्थे आपां ट्रांसफर करांगे जी 2 यूनिट। तो इत्थे रिमेनिंग तुहाडे कोल 1 यूनिट वापस एक बच गया और ये तुहाडे कोल हो गया खत्म। इहदे नाल की होया, तुहाडी जिहड़ी Z कैटागरी है उस कैटागरी दी जिहड़ी अवेलेबिलिटी है सप्लाई है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इहदे लई आपां इहदी कैलकुलेशन नैक्सट टाइम च इनू यूज़ नहीं करांगे, मीनस इस रो नू और इस कॉलम नू आपां ने यूज़ नहीं करना। हुण आपां थर्ड पेनल्टी फाइंड करांगे जी। थर्ड पेनल्टी दे लई आपां लास्ट रो सॉरी पहला आपां कॉलम वाइज इत्थे कैलकुलेट करते हैं। तो इहदे लई आपां अगेन सी नू आपां यूज़ नहीं करना, तो उहदे लई 50 30 का डिफरेंस अगेन 20 सेम हेयर 45 ये आपां कैलकुलेट नहीं करना। बट जदों आपां इस साइड नू कैलकुलेट करांगे तो तुहाडे कोले 50 90 का डिफरेंस 40 30 45 का डिफरेंस 15 ऑलरेडी पहला भी आपां यही डिजिट यूज़ करते सी, दैट्स वाई वैल्यू सेम आ गई। नाउ अपने को जिहड़ी हाईएस्ट पेनल्टी है दैट इज़ 45। तो इहदे विच तुहाडे कोले लीस्ट कॉस्ट है 45 और 45 ते जिहड़ी तुहाडी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है विच एवर इज़ लीस्ट वैल्यू फ्रॉम 1 and 3 दैट इज़ 1 एंड इहदे नाल तुहाडी इहदी वैल्यू चेंज जिहड़ियां होणगियां वो ये आ जाणगियां। इस तो बाद जे आपां देख रहे हैं तो तुहाडे कोले कॉलम 2 इहदी वैल्यू ओवर हो चुकी है, इहदी वैल्यू भी ओवर हो चुकी है एंड रो अपने कोले एक खत्म हो चुकी है जी। यह जदों भी तुहाडे कोल लास्ट दे विच एक कॉलम या एक रो बच जाए उस तो बाद पेनल्टीज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, क्योंकि जिन्नी भी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है हुण इस रो च होनी है, इत्थे हो नहीं सकती क्योंकि इत्थे तुहाडे कोले अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी है। आपां जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है या तो इत्थे होएगी या इत्थे होएगी। तुहाडे कोले अवेलेबिलिटी लई इत्थे है 1 और इत्थे है 3, इत्थे है 2, इत्थे है 3। तो ये आपां पहला 1 इत्थे एलोकेट करांगे क्योंकि दोनों चों लीस्ट कॉस्ट 1 इत्थे आएगी, ये ओवर हो गया, रिमेनिंग बच गया 2 दे नाल 2 ये इत्थे चलिया गया। तो ये तुहाडे कोले टोटल जिहड़ी वैम दे अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन सी तुहाडी ये हो चुकी है। हुण आपां इहदा आंसर कैलकुलेट करांगे। क्वेश्चन नंबर 4 दा अकॉर्डिंग टू वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मैथड दैट इज़ मैं इत्थे तुहानूं शो कर दिना 1 into 50 1 into 50 प्लस 2 into 90 2 into 90 प्लस 1 into 45 1 into 45 प्लस 2 into 200 2 into 200 प्लस 2 into 50 2 into 50। दैन जे आप इनू सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की सारी वैल्यू नू तो ये तुहाडे कोले आ जाएगी 775। इत्थे जे आपां गल करिए जे तुसीं इस क्वेश्चन नू ध्यान नाल पढ़िया होएगा तो इहदे विच तुहानूं दित्ता की सी, मैं इत्थे एक्सप्लेन करना चाहना। क्वेश्चन दे विच गिवन सीगा अ मैन्युफैक्चरर वांट्स टू शिप 8 लोड्स
ऑफ हिज प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर XYZ, ये तुहाडे कोल प्रोडक्शन सेंटर सी XYZ, टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ABC, ये तुहाडे कोल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने ABC। द माइलेज फ्रॉम ओरिजिन, माइलेज फ्रॉम द ओरिजिन मीनस प्रोडक्शन सेंटर तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर दे विच कितना डिफरेंस है, कितनी माइलेज है, किन्ने किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये तुहाडे को दिता होया। डिस्टेंस नू हमेशा आपां मिनीमाइज करांगे क्योंकि जिन्ना डिस्टेंस घट होऊगा उन्नी ही तुहाडी कॉस्ट कटिंग होऊगी, और आपां हमेशा कॉस्ट कटिंग नू ही ध्यान च रखते हैं। तो ये तुहाडे कोले डिस्टेंस गिवन है। नाल ही इस क्वेश्चन दे विच मैट्रिक्स तो बाद तुहाडे कोल एक ऑप्शन एक होर चीज़ दित्ती है, इफ द शिपिंग कॉस्ट इज़ ₹10 पर लोड, जिहड़ी शिपिंग कॉस्ट है वो ₹10 पर लोड है पर माइल, वट शिपिंग शेड्यूल शुड बी यूज्ड, इन्हें आपां नूं शिपिंग शेड्यूल पुछया है। देखो शिपिंग शेड्यूल तुसीं कैलकुलेट कर लिया, जिहड़ी ये वैल्यू तुसीं कैलकुलेट कीती है ये तुहाडे कोले माइल्स गिवन सीगे कि किन्ने माइल्स का डिस्टेंस है। तो ये जिहड़े माइल्स ने, तो आपां ये माइल्स की जो आपां गल कर रहे हैं, तो ये जिहड़ा 775 आया ये तुहाडे कोल माइल्स आए हैं, माइल्स। कॉस्ट लई उन्हें तुहानूं अलग तो गिवन है तुहाडे कोले, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 775 माइल्स इंटू ₹10 पर माइल, जिहड़ा लोड तुहाडे को गिवन है, इट मीनस टोटल जिहड़ा तुहाडा आंसर है दैट इज 7750। ये चीज़ हमेशा ध्यान च रखियो कि जदों भी तुसीं क्वेश्चन नूं सॉल्व करना है उसनूं पहलां प्रॉपरली रीड करना है, ਤਾਂ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 50 30 220 ਹੈ ਇਹ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਈਲਸ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਈਲਸ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੋ, ਬਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, बट लास्ट जे तुसीं इहदी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो वह कॉस्ट इस तरह फाइंड होएगी। ये सीगा जी तुहाडा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जिहड़ा कि मैं तुहानूं दित्ता सीगा उहदा आंसर है जी 517। तुसीं सॉल्व जे कर लिया तो उहदा आंसर जे इन्ना आ रहा है तो तुहाडा ठीक है, अदरवाइज तुसीं चैक करो उहनूं, देखो कि उहदे च तुसीं की गलती कीती है, या मे बी तुहाडा इन्ना ही आ रहा होगा, बट जे नहीं आ रहा तो उन्होंने हुण दोबारा कैलकुलेट करो। मैं तुहानूं दोबारा वैम मैथड नूं यूज़ करन दा मैथड तरीका समझाया, तुसीं इहनूं कैलकुलेट करो। इस तो बाद डियर अपने कोल जिहड़ियां हुण तक आपां प्रॉब्लम्स डिस्कस कीतियां ने उहदे विच सारियां प्रॉब्लम्स दे विच आपां डिस्कस कीता है बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो अज आपां डिस्कस करांगे इसे वीडियो दे विच अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम नूं किद्दां सॉल्व करदे आ। पहली गल अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है कि अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम मीन्स वेयर टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड इज नॉट इक्वल विद ईच अदर। मीन्स या दो सिचुएशंस हो सकदियां ने, वैन सप्लाई इज मोर दैन डिमांड और डिमांड इज मोर दैन सप्लाई। मीनस इत्थे तुहाडे कोले दो सिचुएशंस हो सकदियां ने जिहदे विच तुहानूं डिमांड इक्वल नहीं होगी, या तो सप्लाई डिमांड तो ज़्यादा होगी या डिमांड सप्लाई तो ज़्यादा होगी। उस केस दे विच क्वेश्चन सॉल्व करन लई या प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे लई तुहानूं डम्मी रो या डम्मी कॉलम नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंट्रोड्यूस करना पऊगा। वो किस तरह मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल शो कर रहा वा, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुहानूं दसांगा कि जे डिमांड या सप्लाई इक्वल ना होवे तो उन्होंने आपां पहलां इक्वल किस तरह करना है और क्वेश्चन नूं किद्दां सॉल्व करना है। क्वेश्चन नूं सॉल्व करन लई पहलां डिमांड एंड सप्लाई नूं डम्मी फिगर्स की हैल्प दे नाल आपां सॉल्व करांगे। ये क्वेश्चन आपां अज हुण डिस्कस कर रहे हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम का। तो ये मैं तुहानूं दसांगा कि बैलेंस्ड प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम नूं किस तरह सॉल्व करना है। ये है जी तुहाडा नैक्सट क्वेश्चन। प्रियंका आयरन एंड स्टील कंपनी हैज़ 3 ओपन हेल्थ फर्नेसेस एंड 5 रोलिंग मिल्स।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रुपीज़ पर क्विंटल फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्टील फॉर फर्नेंसिस टू रोलिंग मिल्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल दे विच तुहाडे कोल डियर 5 मिल्स दित्तियां ने, M1 M2 M3 M4 एंड M5। फर्नेंसिस दित्तियां हुई ने F1 F2 F3। मिल्स की रिक्वायरमेंट दी हुई है एंड फर्नेंसिस की कैपेसिटी दी हुई है तुहाडे कोल। कैपेसिटी है तुहाडे कोल 8 12 14, टोटल कैपेसिटी है 34 एंड रिक्वायरमेंट जिहड़ी तुहाडे कोल है मिल्स दी दैट इज़ 4 4 6 8 8 दैट इज़ 30 यूनिट। मीनस जिहड़ी कैपेसिटी है तुहाडी वो ते रिक्वायरमेंट आपस च मैच नहीं करती। इट मीनस ये जिहड़ा क्वेश्चन है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन च लिखा है वट इज़ द ऑप्टिमम शेड्यूल, तो यदा ऑप्टिमल शेड्यूल की होगा आपां वो कैलकुलेट करना है। बट ऑप्टिमल शेड्यूल तो पहला आपां इन्हां दा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करांगे, जिहदे लई आपां वैम वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मैथड इहदे उपर लगावांगे। तो देखते हैं आपां इस अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम नूं किस तरह सॉल्व करांगे। आ देखो जी, तुहाडे कोले फर्नेंस F1 F2 F3 जिहदी कैपेसिटी ये गिवन है, रिक्वायरमेंट 4 4 6 8 8 मिल्स दी ये गिवन है, जिन्हां दा टोटल 30 आंदा है, कैपेसिटी दा टोटल आ रहा है 34। तो ये आपां नूं एक कॉलम ऐड करना पऊगा, मीनस इक्वलाइजेशन करन दे लई, मीनस रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी नूं इक्वल करन दे लई मैं एक नवां कॉलम अपने कोलों ऐड किया है, मिल डमी कॉलम, जिहदी कॉस्ट मैं इत्थे 0 पुट की है, क्योंकि ਜਿਹੜੀ भी मिल या मैं ऐड कर रहा कॉलम या रो कोई भी ऐड करूँगा उसकी कॉस्ट हमेशा डमी की हमेशा आपां 0 ही कंसिडर करनी है, क्योंकि वो आपां सिर्फ क्वेश्चन नूं सॉल्व करन लई प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे लई ऐड अप कर रहे हैं। और इसकी कैपेसिटी कितनी होएगी 4, जिन्ना इहदे विच डिफरेंस है सॉरी रिक्वायरमेंट। तो ये नाल ये जिहड़ा तुहाडा है प्रॉब्लम आपां बैलेंस कर ली, 34 ते 34 आपां इहनूं कर दिता हैगा वा। तो ये 4 इत्थे इंट्रोड्यूस किया एज अ डमी। तो ये नाल तुहाडा जिहड़ा ये क्वेश्चन है वो हो गया हुण बैलेंस्ड। हुण आपां इस क्वेश्चन नूं फरदर सॉल्व करांगे विद द हैल्प ऑफ वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मैथड। वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मैथड दे विच तुहानूं कैलकुलेट करना पैंदा जी यूनिट पैनल्टीज़ 1 एंड हेयर 1। तो आपां उहदे लई की करदे हुंदे आ, जिहड़ी तुहाडी रो है फस्ट रो यदि मिनीमम कॉस्ट फाइंड करांगे किहड़ी है, सब तो लीस्ट कॉस्ट किहड़ी है 0, उस तो नैक्सट 2 इहदा डिफरेंस दैट इज आ यूनिट पैनल्टी। सैकेंड रो दे विच 0 एंड 1 डिफरेंस 1। थर्ड रो दे विच 0 एंड 3 इट मीनस यूनिट पैनल्टी तुहाडे कोल इत्थे की आ गई 3। इस साइड नूं आपां चैक करदे हां डिफरेंस 4 एंड 5 दा 1, 2 एंड 4 दा 2, 3 एंड 4 दा 1, 2 एंड 2 दा 0, 1 एंड 3 दा 2, zeros दा 0। लीस्ट 2 वैल्यूज़ दा डिफरेंस जिहड़ा है वो अपना यूनिट पैनल्टी हुंदा है, और यूनिट पैनल्टीज़ दे विचों आपां हाईएस्ट यूनिट पैनल्टी फाइंड करनी है। हाईएस्ट यूनिट पैनल्टी की है 3। तो इस आपां रो नूं सिलेक्ट किया है, इस रो दे विच सब तो लीस्ट कॉस्ट जिहड़ी है आपां उत्थे एलोकेशन करनी है। लीस्ट कॉस्ट है 0, तो जदों आपां इत्थे एलोकेशन करांगे तो कितनी होएगी विच एवर इज लैस, मीनस रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी चो जिहड़ी वैल्यू घट है वो आपां इत्थे एलोकेट कर दांगे, तो उहदे नाल तुहाडे कोल वैल्यू इत्थे रिमेनिंग बच गई 10 और ये तुहाडे कोले एग्जॉस्ट होगी। मीनस डमी जिहड़ी आपां कॉलम मिल ऐड कीती सी उहदी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, और उहदी जगह ते आपां हुण नैक्सट फरदर उहनूं आपां कंसिडर नहीं करना। इस तो बाद आपां हुण सैकेंड पैनल्टी फाइंड करांगे। सैकेंड पैनल्टी फाइंड करन दे टाइम ते आपां डमी जिहड़ी वैल्यू जिहदी की कैपेसिटी खत्म सॉरी रिक्वायरमेंट एग्जॉस्ट हो चुकी है उन्होंने आपां कंसिडर
नहीं करना, तो इट मीनस इनू आपां बिना कंसिडर किए बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ यूनिट पैनल्टी फाइंड करांगे। फस्ट रो की जो आप यूनिट पैनल्टी फाइंड करते हैं तो लीस्ट 2 वैल्यूज़ हैगियां ने 2 and 2, इट मीनस यदी वैल्यू आ गई 0। नैक्सट है जी 1 and 2, यूनिट पैनल्टी आ गई तुहाडे कोले 1। नैक्सट है जी 3 and 4, यूनिट पैनल्टी आ गई 1। इस तरह हुण तुहाडे कोले इत्थे वैल्यूज़ कैलकुलेट करनियां ने आपां 4 and 5 1 2 1 0 2 डैश। हाईएस्ट यूनिट पैनल्टी 2, बट ए 2 प्लेसिस ते अपने कोले हाईएस्ट यूनिट पैनल्टी है 2, मिल्स 2 दे विच ते मिल्स 5 दे विच। मिल्स 2 दी लीस्ट कॉस्ट है 2, मिल्स 5 दी लीस्ट कॉस्ट है 1। तो जदों तुहाडे कोले लीस्ट कॉस्ट गिवन होवे, जे ये दोनों ये भी सेम होंदियां तो आपां ने पहला उत्थे कैलकुलेट करना सी जिथे ज़्यादा एलोकेशन होवे, बट इत्थे की है, इत्थे लीस्ट कॉस्ट 2 है, इत्थे लीस्ट कॉस्ट 1 है, तो अपने कोले सिलेक्शन दे लई बेस्ट ऑप्शन है दिस वन। जो आपां इत्थे एलोकेट करांगे किहड़ी जगह ते, इस प्लेस ते, इत्थे कितना एलोकेट हो सकता 8, इत्थे हैगा जी 12, तो लीस्ट वैल्यू है 8, दैन इहदे नाल तुहाडे कोले इत्थे बच गया जी 4। हुण तुहाडे कोले ये दो जिहड़े मिल्स ने इन्हां दी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। नैक्सट यूनिट पैनल्टी फाइंड करन दे लई मिल 5 ते मिल डम्मी इन्हां दोनों नूं इग्नोर करांगे ते बाकीआं वैल्यूज़ नूं कैलकुलेट करांगे। मीनस ये दोनों वैल्यूज़ नूं हुण आपां कैलकुलेट नहीं करांगे। तो नैक्सट आपां इन्हां दे विच्चों डिफरेंस देखांगे। 2 and 2 दा डिफरेंस 0। नैक्सट 2 and 4 दा डिफरेंस 2। नैक्सट है जी तुहाडे कोले 4 and 5 दा डिफरेंस 1। एंड हेयर 4 and 5 दा डिफरेंस 1, इत्थे वैल्यू आ गई जी 2। 2 and 4 दा डिफरेंस 3 and 4 दा डिफरेंस 1। 2 and 2 दा डिफरेंस 0। तो अगेन अपने कोले 2 प्लेसिस दे उपर हाईएस्ट यूनिट पैनल्टी है 2, वैल्यू है 2, बट ये 2 प्लेसिस दे उपर है। जे आपां इस रो की गल करते हैं तो ये तुहाडे कोले लीस्ट कॉस्ट है 2, इस कॉलम की गल करते हैं तो लीस्ट कॉस्ट है 2। मीनस यूनिट पैनल्टी भी सेम है, उस तो बाद फरदर उन्हां दी यूनिट कॉस्ट जिहड़ी वो भी सेम है। तो फिर नैक्सट इस तो स्टेज की आती है, आपां ये देखांगे कि इत्थे एलोकेशन कितनी हो रही है। इत्थे एलोकेशन हो रही है जी 4 and 8 दा डिफरेंस, 4 and 8 दा डिफरेंस 4 यूनिट। और इत्थे एलोकेशन हो रही है अगेन 4 and 8 दा डिफरेंस 4। मीनस दोनों जगह ते 4 यूनिट एलोकेट हो रहे हैं। जे इस तरह की सिचुएशन तुहानूं किसी होर प्रॉब्लम दे विच अराइज हुंदी है तो उस केस दे विच जे तां तुहाडे कोले इत्थे एलोकेशन डिफरेंट होवे तो जिथे भी तुहाडे कोल ज़्यादा एलोकेशन हो रही है उत्थे तुसीं पहलां एलोकेट करोगे, बट इस केस दे विच दोनों जगह ते एलोकेशन भी सेम है। तो इसलिए तुसीं जिहड़ी मर्जी जगह ते एलोकेट कर सकते हो, इहदे विच कोई प्रॉब्लम नहीं है। से मैं पहलां इत्थे एलोकेट कर दिना जी, तो उहदे नाल आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व करांगे। इहदे नाल करन दे नाल मेरा ये कॉलम भी एग्जॉस्ट हो गया। मीनस हुण मिल 2 दे लई भी मेरी कोई रिक्वायरमेंट पेंडिंग नहीं है, इसलिए मिल 2 नूं भी मैं हुण अगे फरदर कैलकुलेशन लई यूज़ नहीं करूँगा। तो हुण मैं अगे कैलकुलेशन करदा जी यूनिट पैनल्टी नंबर 4। 4 3 2 डिफरेंस 2 and 3 दा 1। एंड नैक्सट मैं करूँगा जी, हुण मैं मिल 2 नूं यूज़ नहीं करना, मिल 5 नूं यूज़ नहीं करना एंड डम्मी मिल नूं यूज़ नहीं करना। इत्थे मेरे को आ गया जी 5 2 एंड 5 एंड 2 डिफरेंस आ गया जी मेरे को 3।
6 4 7 4 एंड 6 का डिफरेंस आ गया जी 2। सेम इधर वैल्यू सेम आ जाएगी 1 1 0 क्योंकि सेम उही वैल्यूज ने, दैट्स वाई। तो हुण मेरे को जी हाईएस्ट यूनिट पेनल्टी है जी दैट इज 3। ठीक है जी, सॉरी मैं पिछे एरो नहीं लगाया, आपां इनू यूज किया है लास्ट एलोकेशन दे लई। एंड इत्थे मैं हुण 3 ताड़ी यूनिट पेनल्टी हाईएस्ट है, इस रो नू यूज करूँगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ को लीस्ट कॉस्ट ਦੇ ਲਈ 2 5 एंड 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लीस्ट कॉस्ट 2 ਜਿਹੜੀ कि लास्ट कॉमन आई सी अपनी, बट आपां ਇਹਨੂੰ चूज ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ इग्नोर करता सी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ एलोकेशन करांगे, दैट इज़ 4 एंड 8 ਦਾ डिफरेंस 4 एंड ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ रो खत्म हो चुकी है ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बैलेंस बचिया है 4 यूनिट। ਹੁਣ ਇਹ एलोकेशन ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ मिल 2 मिल 5 डमी मिल एंड दिस वन फर्नेस 2, ਇਹਦੀ सारी कैपेसिटी ओवर हो चुकी है। तो हुण आपां कैलकुलेट करांगे यूनिट पेनल्टी 5, ਉਹਨੂੰ कैलकुलेट करन लई आपां फर्नेस 2 मिल 2 मिल 5 मिल डमी नू यूज नहीं करांगे। तो आपां जे फस्ट रो की गल करिए तो अपने को अवेलेबल वैल्यूज किहड़ियां ने 4 3 एंड 2। ठीक है जी, 4 3 2 दे विचों लीस्ट 2 वैल्यूज 3 एंड 2, इहदा डिफरेंस 1। इत्थे आपां कैलकुलेशन नहीं करनी। अगेन 6 4 एंड 7 दे विच 4 एंड 6 का डिफरेंस 2। हुण आपां फर्नांस 2 नू यूज नहीं करना, तो 4 एंड 6 का डिफरेंस देखांगे दैट इज 2। 3 एंड 4 का डिफरेंस देखांगे 1। 2 एंड 7 का डिफरेंस देखांगे 5। तो हुण आपां देखांगे हाईएस्ट पेनल्टी दैट इज 5। तो ये अपने कोले रो कॉलम सिलेक्ट हो गया। ये लीस्ट कॉस्ट 2, इत्थे जिहड़ी एलोकेशन होएगी विच एवर इज लीस्ट बट दोनों वैल्यू सेम ने, तो आपां इत्थे 4 एलोकेट कर देंगे, A4 ते A4 कट हो गया। इहदे नाल तुहाडे कोले रो 1 रो 2 मिल 5 मिल डमी एंड मिल 2 ये सारियां वैल्यूज़ आपां ऑलरेडी कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट्स इन्हां दियां पूरियां हो चुकियां ने। हुण बचिया की है, सिर्फ फर्नांस 3 दी कैपेसिटी 10 एंड मिल 1 दी रिक्वायरमेंट 4 एंड मिल 3 दी रिक्वायरमेंट 6 ये पेंडिंग है। जदों तुहाडे कोले एक रो जां एक कॉलम लास्ट ते एक कॉलम जां एक रो बच जाए, उदों आपां नूं फर्दर कैलकुलेशन मीनस यूनिट पेनल्टी दी करन दी जरूरत नहीं हुंदी। तां इत्थे हुण आपां डायरैक्ट एलोकेशन कर सकते हैं जिथे तुहाडी कॉस्ट लीस्ट है, क्योंकि 2 ही सैल तुहाडे कोल पेंडिंग बचे है, एक 4 ते एक 6। 4 दे केस दे विच तुहाडी एलोकेशन होनी है जी डिफरेंस इन्हां दा 6। तां इत्थे तुहाडे कोल बचे 4 यूनिट एंड हुण आपां 6 दी जगह ते एलोकेशन करांगे 4 एंड 4, इत्थे तुहाडे कोल एलोकेशन हो जूगी जी 4 यूनिट। इहदे नाल तुहाडी सारी एलोकेशन जिहड़ी सी पूरी रिक्वायरमेंट और पूरी कैपेसिटी यूज़ हो चुकी है। आपां एक्सट्रा डमी कैपेसिटी यूज़ की सी 4 यूनिट, उन्होंने भी आपां एलोकेट करता, बट उहदा टोटल कॉस्ट के उत्ते कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट आपां डमी रो दी जां डमी कॉलम दी जदों भी इंट्रोड्यूस करांगे उन्होंने आपां हमेशा 0 कंसिडर करांगे, तां उस दे नाल उहदी वैल्यू ऑटोमैटिकली 0 हो जाएगी। हुण आपां इस क्वेश्चन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ 4 इंटू 2 प्लस again 4 into 2, next 4 into 2 plus 4 into 2 plus 8 into 1 plus 4 into 6 plus 6 into 4
प्लस 4 इंटू 0। ये सारी वैल्यू नू कैलकुलेट करन दे नाल जिहड़ा तुहाडा आंसर आएगा जी दैट इज़ 80 रुपीज़। ठीक है जी। तो ये सीगा तुहाडा अनबैलेंस प्रॉब्लम नू सॉल्व करन दा तरीका। ये सिर्फ इक्को ही चीज़ आपां नवीं कीती है, वो ये कि आपां ने एक नवा रो या कॉलम ऐड किया है जिस भी अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अपनी रिक्वायरमेंट ये सीगी कि अपनी रिक्वायरमेंट घट सी, कैपेसिटी ज़्यादा सी, तो आप रिक्वायरमेंट दे विच जिन्नी वैल्यू घट सी उन्नी आप इंट्रोड्यूस करती। उहदे नाल एक डमी कॉलम आपां नूं इंट्रोड्यूस करना पिया जिहदी सारी कॉस्ट आपां 0 कंसिडर करनी है। हमेशा डमी की जिहड़ी कॉस्ट है वो हमेशा 0 होएगी। सेम इसे फॉर्मेट का ही एक क्वेश्चन मैं तुहाडे नाल इस वीडियो 'च शेयर कर रहा वां। वो क्वेश्चन तुसी ट्राई करियो विद द मीनस उहदे विच अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम वो होगी। अनबैलेंस प्रॉब्लम दे विच तुसी डमी रोज या डमी कॉलम चैक करके कि किहड़ा ऐड होना आ उहनूं ऐड करके तुसी ट्राई करो क्वेश्चन नूं। ते नैक्सट वीडियो दे विच मैं हुण तुहानूं फरदर जिहड़ा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दा कि ये तुहाडे जिहड़ा सीगा इनीशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आपां कैलकुलेट करना सीख लिया वा। तो नैक्सट तुहाडे कोल हैगा आ ऑप्टीमल सोल्यूशन कि इहदा ऑप्टीमम आंसर की है लीस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करन दा। वो आपां नैक्सट जिहड़े उहदे मैथड्स ने वो डिस्कस करांगे नैक्सट वीडियोज़ दे लई। ये तुहाडा जिहड़ा हुण स्क्रीन ते तुहानूं नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस दे लई मैं तुहानूं दे रहा वां। इहनूं तुसीं ट्राई करो और सॉल्व करो। इहदा आंसर मैं तुहाडे नाल नैक्सट वीडियो दे विच शेयर कर लांगा। थैंक्स अ लॉट।